Greetings, my dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing your work honestly. My dear students, I want to tell you one thing, that you all have to do your work with conceptually, because concept is power, and if you study all these things with conceptually, then there will be not any type of problem in further chapters. Now, my dear students, in this video we will discuss our next sum of exercise 1.3, and our next sum is question number 4. In this we have to express a non-terminating plus recurring decimal expansion in p by q form. Okay, so the statement is express 0.999 and up to so on in the form of p by q. As usual, whatever the statement is given, we have to put that statement equal to x. So let solution, let x is equal to 0.9999 and so on. This is our first equation. Okay, now we have to check how many digit repeats in this statement. Only one 9 digit repeat again and again, so we have to multiply both side by 10. आप लिखोगे यहाँ multiply both side by 10. Okay, तो 10x is equal to 10 cross 0.9999 and so on. ठीक है, अब multiply कर दो. If you multiply by 10, the decimal comes after 9. तो ये हो जाएगा 9.9999 and so on. ठीक है, this is our second equation. Now the next step is we have to subtract these two equations. तो आप लिखोगे subtract first from second, क्योंकि second वाली बढ़िया है ना, तो first को second में से subtract कर दो. ओके, तो then second x 10x equal to 9.9999 and so on, and then first को subtract करना है 0.9999 and so on. अब subtract कर दो. ठीक है, minus and minus, 10x minus 1x 9x is equal to 9.000. तो हमारा आंसर क्या है, सिर्फ 9. तो x क्या आ जाएगा, 9 by 9. 9 by 9 means 1. 1 आ गया, that is our answer. So that means 0.999 bar is equal to 1. This is our answer. All steps are very easy. The first, whatever the statement is given, we have to write that equal to x. Second step, we have to check how many digit repeats. Third step, if one digit repeat, we have to multiply both side by 10. If two repeat, we have to multiply both side by 100. Okay, अब यहाँ एक ही रिपीट है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. आफ्टर सब्ट्रैक्शन द आंसर विल बी हियर, द वैल्यू ऑफ x इज हियर 1. ओके, now my dear students, we all are surprised to see the answer, because here 0.9 bar equal to 1. This is answer. ये आंसर है हमारा. 0.9 बार स्टेटमेंट थी और आंसर हमारा क्या है, 1. We all are surprised कि how 0.9 bar equal to 1. Yes, my dear students, the difference between 1 and 0.99 bar means 9999 and 9. If we take 5 nines, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 0.00001. ये अगर मैं 9 यहाँ इसके प्लेस पे एक और 9 लूँ, the answer will be 0.0000 and 1. This difference is very small, it is negligible. ठीक है, it is negligible, we can ignore this difference. So 0.9 bar is closely approximate equal to 1. Okay, this is equal to 1. Now my dear students, we will discuss our sixth sum next sum. In this we have to take several examples in the form of p by q, where no common factor in between p and q other than 1, and we have to check that q, if the decimal expansion is in terminating form, then q must satisfy what property. Okay, so firstly I will take the different rational numbers and we will find these in decimal form. Okay, yes, let the first be 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6. ठीक है, 1 by 2 answer will be 0.5 and 1 by 3 the answer will be
0.3333 and so on. 1 by 4, if we divide 1 by 4, the answer will be 0.25. And 1 by 5 means 0.2, and 1 by 6 means 0.6 1 is 6, 4, 6, 1, 6, 6, 6 and so on. Okay. And if the answer will be 1 by 7, the answer will be, if we divide 1 by 7, 0.142857 bar. Bar means these 6 digits repeat again and again. Okay. And 1 by 8, 0. If we divide 1 by 8, the answer will be 0.125. And 1 by 9, 0.111 and so on. And 1 by 10 means 0.1. Now we take different examples. We can take 1 by 11, 12. Okay. In this different examples, what we check? What property Q must satisfy if the answer will be in terminating form. देखो terminate कहाँ है? ये terminate है हमारा, ठीक है, ये terminating है, but ये नहीं है, ये भी हमारा terminating form में है. Terminate means जिसका decimal expansion कुछ places के बाद stop हो जाए. Okay? ये हमारा terminating नहीं है, ये भी नहीं है terminating. This is also terminating, not and yes terminating. अब जो terminate है, check करता है कि Q क्या property satisfy कर रहा है. Terminate है P by Q, तो Q किस फॉर्म में है? 2 की फॉर्म में, ठीक है. And here Q क्या है? 4 means we can write 4 as 2 raised to power 2. तो ये भी क्या है? 2 की फॉर्म में ही है. 1 by 5, 5 का भी टर्मिनेट है, तो अगर इसका मतलब 5 हो, then it is also terminating. 6 not terminating. 7 not 8. 8 means 1 by 2 raised to power 3. हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 8 को 1 by 2 की पावर 3, तो ये भी 2 की फॉर्म में हो गया. 9 not terminating. बट 10, तो 1 by 10 को मैंने क्या लिखा? 1 by 2 क्रॉस 5. ठीक है. इट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और पावर ऑफ 2, 5 और पावर ऑफ 5 और 2 क्रॉस 5 बोथ, then the decimal expansion is in terminating form. ठीक है, हमने यही चेक किया कि Q किसे सेटिस्फाई करेगा. Now we can write it as if Q satisfy, Q is in the form of 2 or 2 raised to power m. m का मतलब उससे कोई पावर ले ली, ठीक है. 5 और 5 raised to power n और 2 क्रॉस 5 बोथ, तो 2 की m क्रॉस 5 की n, where m and n both are integers. integers ही तो है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 up to so on, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. इट मीन्स अगर Q इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन द आंसर विल बी इन टर्मिनेटिंग फॉर्म. ओके. नेक्स्ट सम, वी हैव टू राइट the decimal expansion of that number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring. Non-recurring means non-repeating form. ठीक है. हमें कोई भी एग्जाम्पल देना है, एज यू विश, हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले लें. ठीक है ना. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? 2.1414 114 111 4 एंड सो ऑन. ठीक है ना. अब देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? पहले मैंने सिंगल 1 लिया, फिर डबल लिए, फिर ट्रिपल लिए, फिर 4 लिए. इट मीन्स ये आगे चल रहा है, कहीं स्टॉप नहीं हुआ. तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग फॉर्म. ठीक है. ये एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है इरेशनल नंबर्स को लिखने के लिए. इन दिस देयर विल बी नॉट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज अब आगे कितने डिजिट ले लो, कभी भी रिपीट नहीं होगा. ओके. सेकेंड आप ले लो एज यू विश. 4.02 002 0002 एंड सो ऑन. दिस इज ऑल्सो, ये स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं इरेशनल नंबर्स को लिखने के लिए. आपकी बच्चे कुछ भी लिखो. अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ 0.95 955 9555 एंड सो ऑन. ठीक है ना. सो दीज टाइप्स वी कैन राइट many irrational numbers whose decimal expansions are non-terminating plus non-repeating form. Okay. So we have to write 3, 4, 5 as whatever the statement is given. Next sum. We have to find 3 irrational numbers between
द स्टेटमेंट इज बिटवीन 5/7 and 9/11. We have to find three irrational numbers between 5/7 and 9/11. My dear students, if we have to find rational, then it is very easy. 3 और 4 है तो 3.1, 3.2 इस तरह से डेसिमल लिखा और हमने उस पर डेसिमल को रिमूव किया, डिवाइड बाय 10 या 100 किया. ठीक है. अगर इरेशनल निकालने हैं तो सबसे पहले इरेशनल नंबर्स हमें पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं, तो इसको भी सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल में चेंज करेंगे. ठीक है ना. तो आप चेंज करो 5/7. व्हेन वी डिवाइड 5/7 द आंसर विल बी 0.714,285 बार. रिपीट हो गया ना. जिसके नीचे 7 है वो क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होता है आफ्टर 6 डिजिट्स. डेसिमल के 6 प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो ये 6 ही है. इफ वी डिवाइड 9/11 0.8189. when we divide 9/11 81 81 81 and so on, it means the answer will be 0.81 बार. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा क्या काम था, हमने कर लिया इनको डेसिमल में चेंज. अब लिखो आप, नाउ लिखो इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11 आर. 3 निकालने हैं ना. अब यहां से आपको देखना है, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. 5/7 का आंसर है 0.71 एंड समथिंग. इट मीन्स 0.7 से स्टार्ट है, 7 के बाद वाले लेने हैं. और 9/11 मीन्स 0.8. इसका मतलब हमें 0.7 और 8 के बीच के इरेशनल नंबर्स बनाने हैं. ठीक है ना. तो आप बना लो. 0.7 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो मैं 7 ले लेती हूँ. नाउ नेक्स्ट हम अपना स्पेसिफिक पैटर्न बनाएंगे इरेशनल वाला. 0.72 01 001 0001 401 एंड सो ऑन. ठीक है. सेकेंड रेशनल नंबर्स क्या होगा, 0.7 के बाद 3 ले लो, आगे ले लो 02 002 0002 एंड सो ऑन. नेक्स्ट नंबर ले लो 0.74 03 003 0003 एंड सो ऑन. इन दिस वे वी कैन राइट मैनी इरेशनल नंबर्स. ओके. तो इन्होंने 3 कहा है, 5 कहा थे. इफ इट इज आज 5 देन यू कैन राइट नेक्स्ट 0.75 01 001 0001 and so on. Okay. In this way we can write irrational numbers between given two rational numbers. तो रेशनल को पहले डिवाइड करो, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करो और फिर उन दोनों के बीच में इरेशनल का पैटर्न फॉलो करो. ओके. नेक्स्ट वी हैव टू क्लासिफाई whether they are the rational or irrational numbers. Okay. First part, root 23. 23 is a prime number. अब 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का और ये प्राइम है, तो प्राइम के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो देन दैट नंबर इज ए इरेशनल नंबर्स. ओके. तो इसका आंसर क्या है, ये इरेशनल नंबर्स है. इरेशनल नंबर. रूट स्क्वायर रूट ऑफ 225. अब हमें पता है कि 225 किसका स्क्वायर होता है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ये 15 का स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर. ठीक है. अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल कैंसिल विद ईच अदर, तो आंसर क्या है 15. तो 15 को 15/1 लिखेंगे देन इट इज ए रेशनल, क्योंकि p/q की फॉर्म में हो गया और q नॉट इक्वल टू 0. दिस इज इक्वल टू रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट 0.3796. अब देखो डेसिमल के 4 प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट रुक गया है, टर्मिनेट हो जाए दैट इज ए रेशनल नंबर. तो ये क्या होता है, रेशनल. बिकॉज जो टर्मिनेट होते हैं हम उन्हें p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो कैसे करेंगे, 0.3796 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 3796 बाय 10,000, तो p/q में चेंज हो गया एंड q नॉट इक्वल टू 0. ओके. नेक्स्ट 7.478 एंड सो ऑन. इसका मतलब ये क्या है, 7.478 के ऊपर बार है. ठीक है. अभी हमने 1.3 एक्सरसाइज में क्या किया है, द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग दैट आर रेशनल नंबर्स. अब हमने p/q में चेंज कर सकते हैं ना, तो
तो इसका मतलब इसे भी करेंगे क्योंकि इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन. सो दिस इज ए रेशनल नंबर. And next 1.10, 100, 100, 1401 and so on. अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग. तो ये क्या हो गया, यस दिस इज ए इरेशनल नंबर. Irrational number. Okay, so in this way we can classify the numbers which are rational and irrational. My dear students, if you understand the concept of terminating, non-terminating, recurring and non-recurring, then easily we can write, you can write the number is a rational or irrational numbers. I will tell you this again. Look here, if the number is, अगर ये number given है 1.2345, ये नंबर गिवन है. अब बताओ ये क्या है, ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट. डेसिमल के 4 प्लेसेस बाद आंसर रुक गया. ठीक है, इट में से स्टॉप हो गए. स्टॉप का मतलब ये क्या है, टर्मिनेट. टर्मिनेट होते ही वो कहां चला जाएगा, रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा. लुक हियर, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू नो ऑल दीज टर्म्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होंगे. रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या है, 2 टाइप्स के हैं, या तो डेसिमल या सिंपल. अब डेसिमल में क्या होंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है ना, अगर डेसिमल वाले नंबर हैं, रेशनल नंबर डेसिमल के लिए हमने, तो ये क्या है, या तो ये टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे. ठीक है, अगर ये नॉन टर्मिनेट हो गए, ठीक है, तो क्या होंगे, रिक्यूर या नॉन रिक्यूर. यस, नॉन टर्मिनेट है, अगर उसे रेशनल का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब वो रिपीटिंग फॉर्म में होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, ठीक है. नॉन टर्मिनेट होंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड नॉन टर्मिनेट होंगे, उसके साथ क्या होना पड़ेगा, रिक्यूर, रिपीट होना पड़ेगा, तब उन नंबर्स को रेशनल कह सकते हैं. अगर नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिक्यूरिंग है, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल numbers. That's it, my dear students.